बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से सलामती आप सब के साथ हो। पाक दिल दो अल्फाज का मजमूआ है, पाक यानी इलाही। यसु का दिल खुदा की इलाही ज़ात का अक्कास और तर्जुमान है, और दिल जिसको मुक़द्दस सहाइफ में अक्ल से तशबीह दी गई है, यसु के पाक दिल को यसु की इलाही अक्ल व दानाई से मिलाया जाता है। वो इलाही ज़ात जिसने खुदा होकर ख़ुद को इंसानी ज़ात के रूप में मुनकशिफ किया। यसु का पाक दिल पाकीज़ा है और वो हम सब को पाकीज़गी की दावत देता है। यसु फरमाते हैं, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। यसु मसीह का पाक दिल खुदा की इंसानियत यानी हम सब के लिए लामहदूद और पुरजोश मोहब्बत की अलामत है। अक़दस दिल यसु मसीह की दोनों फ़ितरतों, मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान की याद दिलाता है। मुकम्मल इंसान होते हुए यसु मसीह ने इंसानी जज्बात का तजुर्बा किया, जिसमें दर्द, तकलीफ़, शफ़क़त और मोहब्बत जैसे जज्बात हैं, और मुकम्मल खुदा होते हुए खुदा की इलाही पायदार और बेलौस मोहब्बत और रहम की ताकतवर निशानी या याद दहानी है। अक़दस दिल की ईद मोमिनों को मसीह के दिल में सुकून और ताकत हासिल करने की दावत देती है। ये ईद यीशु के साथ गहरे ताल्लुक़ को फ़रोग़ देती और ईमान और मोहब्बत के अमाल को बढ़ाने की तहरीक है। अक़दस दिल की मोहब्बत हमें दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी में बढ़ने की तरगीब देती है। मुक़द्दस दिल के लिए अक़ीदत हमें यीशु जैसे दिलों को परवान चढ़ाने की तरफ माइल करती है। ऐसे दिल जो खिदमत करने, मुआफ़ करने और गैर मशरूत मोहब्बत करने के लिए तैयार हों। इस ईद को मनाते हुए आए दुआ करें कि हम बुनियादी मसीही इक़दार, ईमान और मोहब्बत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इस बात के शुरू में गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों बेशुमार सफरिश्त और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। Glory to
ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، ہم تیرے پیارے بیٹے کے دل کی محبت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ہم اس کی نعمتیں اور بخششیں بھلا نہیں سکتے۔ عطا کر کہ ہم نعمتوں کی اس الہی سرچشمے سے کثرت سے فضل پایا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں سے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب اس کے 34ویں باب کی 11ویں آیت میں سے بیان۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی خبر لیتا ہے جبکہ وہ اپنی آوارہ بھیڑوں کے درمیان ہو، اسی طرح میں بھی اپنی بھیڑوں کی خبر لوں گا اور ان کو ان تمام مقاموں سے چھڑاؤں گا جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن منتشر ہو گئی ہیں، اور میں ان کو قوموں کے درمیان سے نکال لاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر اور وادیوں میں اور ملک کے تمام مرغزاروں میں ان کو چراؤں گا۔ میں اچھی چراگاہ میں ان کو چراؤں گا اور ان کا بھیڑ سالہ اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر ہوگا، وہاں وہ سبز گھاس پر آرام کریں گی اور اسرائیل کے پہاڑوں پر سبز چراگاہ میں چریں گی۔ میں اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا اور انہیں لٹاؤں گا، مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے۔ تب میں اپنی کھوئی ہوئی کو ڈھونڈوں گا اور ہانکی ہوئی کو واپس لاؤں گا اور ٹوٹی ہوئی کو باندھوں گا اور کمزور کو طاقت دوں گا اور مضبوط کی حفاظت کروں گا، میں ان کا حقیقی چرواہا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، مجھے کوئی کمی وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے، گرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔
مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے مسا کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، مجھے کوئی کمی نہیں۔ میری زندگی کے ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خدا کی محبت ہم پر یوں ثابت ہوئی کہ مسیح ہماری خاطر مر گیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کے 5ویں باب سے۔ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے، اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں اونڈیلی گئی ہے، کیونکہ جب ہم ہنوز کمزور ہی تھے تو مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر موا۔ پس کسی صادق کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی میں یہ جرت ہو کہ کسی نیکوکار کی خاطر اپنی جان دے۔ لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی ہے کہ جب ہم ہنوز گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث صادق ٹھہرے تو اب کتنا زیادہ اس کے وسیلے سے غضب سے بچے رہیں گے، کیونکہ جب ہم دشمن ہونے کے باوجود خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے سبب سے مل گئے تو ملنے کے بعد اس کی حیات کے سبب سے کتنا ہی زیادہ بچ جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کے سبب سے اب ہم مل گئے ہیں، اور خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ तेरी प्रस्ताव
خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق ہے۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن یسوع نے فریسیوں اور فقیہوں سے یہ تمثیل کہی، تم میں سے ایسا کون آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں نہ چھوڑے اور جب تک اسے نہ پائے اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا نہ پھرے، اور جب پائے تو خوش ہو کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے یوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو، کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک تائب گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، میں آج کی عبادت کی شروعات میں آپ سب کو آج یسوع مسیح کے اقدس دل کی عید کے موقع پر سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ عید یقیناً آرچ ڈائسیس کی عید ہے، کیونکہ یہ کیتھیڈرل اس نام سے مخصوص ہے۔ میں یاد کرتا ہوں سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل جو میں آرچ بشپ ہوں، وہاں پہ سینٹ پیٹرکس کی عید روزوں کے دنوں میں اکثر دفعہ عموماً آ جاتا ہے، صرف روزوں میں، تو وہاں پہ بھی ہم مناتے تو ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ روزوں کی کیفیت کے ناطے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ صحیح سے سیلیبریشن نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں اقدس دل کی عید میں گرمی، اور دوسری بات کافی ہمارے فادرز بھی گئے ہوئے ہیں چھٹی پہ روم میں۔ آئیں آج اقدس دل کی عید کے ناطے سے، یسوع کے اقدس دل کی عید کے ناطے سے پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب میں کاہن بنا کافی سالوں تک زندگی کا مقصد کیا تھا میرے لیے، انجیل مقدس میں یسوع کہتا ہے کامل بنو جس طرح تمہارا باپ کامل ہے، اور کافی سالوں تک یہ میری زندگی کا مقصد رہا ہے کہ میں نے کامل بننا ہے۔ لیکن تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، 2-3 سال ہو چکے ہیں جب میری اس سوچ میں تبدیلی آئی۔ اور وہ کیوں؟ میں سوچنے لگا کہ کامل تو مرنے کے بعد ہم سب ہوں گے، اس زندگی میں اگر زندگی کا مقصد بننا ہے، مکمل انسان بننا ہے، مکمل انسان، ٹو بی ٹرولی ہیومن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ سال پہلے بلوچستان کوئٹہ کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے کچھ افراد کو بڑی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا، بہت بے دردی سے، اور دہشت گرد نے ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا جو کہ بہت بہت برا تھا۔ ہزارہ کمیونٹی نے اپنے لاشوں کو لے کر انہوں نے روڈ کے بیچ میں لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ احتجاج کریں گے جب تک حکومت کے افراد آ کے ہمیں تسلی نہ دے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے۔ اور اس وقت پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی، اور مجھے یاد ہے ایک رپورٹر نے ایک نوجوان لڑکی جو ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی ان کا انٹرویو لیا، اور وہ لڑکی یہ کہنے لگی کہ ایک جانور بھی دوسرے جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتا ہے جس طرح ان دہشت گردوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ ایک جانور بھی دوسرے جانور کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتا ہے جس طرح
इंसान ने हमारे साथ किया। वो लड़की क्या कहना चाहती थी? वो लड़की यकीनन ये कहना चाहती थी कि इंसान होते हुए हमें एक दिल रखना चाहिए जो गोश्त का दिल हो। अगर हम पुराने एहतनामे की तरफ जाएं, खुदावंद की शिकायत बनी इसराइल कौम के साथ यही था। बार बार ये लफ्ज़ बनी इसराइल कौम के साथ ये लगता है कि ये एक सख्त दिल कौम है, हार्ड हार्टेड रेस, हार्ड हार्टेड पीपल, सख्त दिल कौम है। और इज़ीकियल उसके 11वें बाब में एक बहुत खूबसूरत आयत 19 और 20वीं आयत, जिसमें इज़ीकियल खुदा के अल्फाज कहता है, और मैं उनके बदन से पत्थर का दिल निकाल दूंगा और उन्हें गोश्त का दिल दूंगा। बनी इसराइल कौम की सबसे बड़ी गुनाह यही थी कि वो सख्त दिल कौम थे। जब हम यीशु मसीह की तरफ जाते हैं तो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि किस तरह उसके पास गोश्त का दिल था। हम मुस्तरफ बेटे की तमसील को देखें, हम उस औरत को जो ज़िना में पकड़ी गई उसको पढ़ें, नेक सामरी की कहानी, लाजरस की कहानी, और आज की अंजील मुक़द्दस में 99 भेड़ों को छोड़कर खुदावंद एक भेड़ के पीछे जाता है। ये सारी तमसीलें, कहानियाँ, वाक़ियात हमें याद दिलाती है कि यस्सु का दिल सख्त नहीं था, गोश्त का दिल था। और आज पैगाम, आज चैलेंज हमारे लिए यही है कि मैं अपने दिल का जायज़ा लूँ, सख्त दिल है या गोश्त का दिल। एक आदमी जिसका दिल बहुत कमज़ोर था, डॉक्टर ने उसका जायज़ा लेकर कहा, भाई तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर, तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत मुश्किल। वो रात ये बंदा बड़ी बेचैनी से सो गया, दुआ करते कि ए यस्सु मुझे नया दिल दे, ए यस्सु मुझे नया दिल दे। वो सो गया और रात में ख्वाब में यस्सु उसके पास आया, और जैसे ही उसने देखा उसने दोबारा मिन्नत की, है यस्सु मुझे नया दिल दो। यस्सु ने कहा चल मेरे साथ, मैं तुम्हें नया दिल देता हूँ। और एक ऐसे कमरे में लेके गए जहाँ पे दिल सारे शेल्फ पे सजे हुए थे, और यस्सु ने कहा जाओ अपने लिए कोई दिल ढूंढो। तो वो बंदा ढूंढने लगा कौन सा एक अच्छा खूबसूरत प्यारा सा दिल मिल जाए ताकि वो इसका नया दिल बन जाए। और जब उसने एक ढूंढ लिया तो वो यस्सु के पास आया। लेकिन जब वो यस्सु के पास आ रहा था उसने देखा कि एक दिल था जहाँ से खून निकल रहा था, एक दिल जिससे खून निकल रहा था। और खूबसूरत तो नहीं लग रही थी क्योंकि दिल खून सारी जगह पे फैल रहा था। और उसने यस्सु की तरफ देखकर कहा, ए यस्सु ये क्या है, ये किसका दिल है? और यस्सु ने कहा ये मेरा दिल है जो दुनिया के गुनाहों, दुनिया की अज़ियत तकलीफ़, दुनिया के गुनाहों के लिए ये खून बह रहा है। ये आदमी कुछ देर सोचता रहा उस दिल के सामने, और अपनी खूबसूरत दिल रख कर उसने कहा, ए यस्सु मुझे ऐसा दिल दो ताकि मैं भी दूसरों के लिए खून बह सकूं। मेरे अज़ीज़ों, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आज जब हम यस्सु के अक़दस दिल की कहानी, अक़दस दिल की ईद की तरफ जाते हैं तो ये वो ऐसी कहानी नहीं जिसमें बहुत खूबसूरत दिल नज़र आती है। जिस तरह यहाँ पर यस्सु के अक़दस दिल हमें दुख तकलीफ़ की तरफ ले जाती है। ये दिल हमें उन जगहों पे ले जाती है जहाँ पर हम जाना नहीं चाहते हैं। ये दिल हमें उस जगह तक ले जाती है जहाँ हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। सवाल ये है कि किस तरह मैं इस तरह का दिल हासिल करूं। मुक़द्दसा ट्रीज़ ऑफ एविला उसने बहुत सी खूबसूरत बातें यस्सु के दिल के नाते से लिखी, और उसने हमें बताया कि अगर आप यस्सु के दिल की तरह अपना दिल बनाना चाहते हैं, if you would like to have the disposition
of the heart of Jesus, अगर यस्सु के दिल की तरह आप अपने दिल को बनाना चाहते हैं तो 3 नुकात पर गौर करना है। पहले नंबर पर अपने दिल को यस्सु के दिल बनाने के लिए सबसे पहले हलीमी, ह्यूमिलिटी। आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया वो एडवाइस, वो नसीहत जो मेरी अम्मी ने मेरे बिशप बनने के दिन पर उसने मुझे कहा, छोटा सा जुमला, बेनी बी हम्बल, बेनी हलीम रहो। और यकीनन ये मेरे लिए जैसे एक चाकू, एक सॉर्ड है यहाँ पर गर्दन पर, क्योंकि बार बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे हलीम रहना है, जो कि एक काहिन, एक सिस्टर, एक इंसान के लिए बहुत बहुत मुश्किल, एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हलीम रहना। लेकिन यीशु हमें याद दिलाता है, मेरे दिल हासिल करना चाहते हो, सबसे पहला नुक्ता हलीम रहना है। डीकन काहिन बनने के लिए तैयारी कर रहा था और उसने अपनी ज़िंदगी के लिए जो आयत चुनी, काहिनाना जो आयत चुनी, मरकज़ी आयत वो ये थी, यस्सु को दरकार है, द लॉर्ड द मास्टर नीड्स इट। यस्सु को, उस्ताद को दरकार है। और ये आयत कहाँ से ली गई? ये आयत खजूरों के एतवार जब यस्सु यरूशलेम में दाखिल होने को था, उसने अपने शागिर्दों को भेजा एक खोता लाने के लिए, खोते का बच्चा लाने के लिए, और उसने कहा अगर तुम्हें कोई रोके तो उनको कहें उस्ताद को दरकार है। ये डीकन ने अपनी मरकज़ी आयत काहिन बनने के लिए ये चुना, उस्ताद को दरकार है, दिखाने के लिए अपनी हलीमी कि अगर उस्ताद को ज़रूरत है तो मैं हलीमी से अपने आप को इस जानवर की तरह बनाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, यस्सु के पीछे चलने के लिए हलीमी अहद बहुत ज़रूरत दरकार है। आए आज हम याद रखें कि यस्सु के दिल की तरह अपने दिल बनाने के लिए सबसे पहले हलीमी। दूसरे नंबर पर ला ताल्लुकी, डिटैचमेंट। और कौन सी चीज़ें? वो चीज़ें जो हमें यस्सु के करीब नहीं ले जाती है, डिटैचमेंट, ला ताल्लुकी। एक भिखारी एक गुरु के पास गया जो दुआ में मगन था, और इस भिखारी ने इसकी तरफ इशारा करके कहा, सर मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ पैसे दो। वो गुरु जो दुआ कर रहा था उसने अपने हाथ जेब में डालकर एक पत्थर निकाला और उसको दिया। और जब उस भिखारी ने पत्थर देखा तो उसने देखा कि ये बहुत बहुत कीमती पत्थर, उसको बहुत पैसे मिलेंगे। जैसे ही उसको पत्थर मिला उसने उसको छुपाया, अपनी जेब में डालकर भागा, और हर जगह देखते देखते वो घर पे पहुंचा। लेकिन घर में भी वो सोचने लगा कि मेरे ख़ानदान को पता चलेगा, वो भी मेरे पीछे पड़ेंगे। उसने ज़मीन खोद कर उसको छुपाया। वो बाहर गया भीख मांगने के लिए, लेकिन उसका टेंशन ये था कि कोई उसको निकाल ना ले। वापस आया, उसको देखा कि वहाँ पर ही है, दोबारा वो गया, लेकिन ये बार बार उसके जहन में टेंशन ही आ रहा था कि ये कीमती पत्थर कोई ले के ना जाए। पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता निकला और वो इसी तरह के टेंशन में रह रहा था कि मुझसे ये पत्थर चोरी ना हो। आखिरकार इस टेंशन से बीमार होने के बाद उसने फैसला किया कि मैं वापस उस गुरु के पास जाऊं। उसने ज़मीन खोदा, पत्थर निकाल के वापस उसके पास गया और सर से कहा, सर ये वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ की भीख मांगता हूँ। तो उस गुरु ने कहा, क्या मैं आपको दे सकता हूँ? उसने कहा, ये ला ताल्लुकी की रूह जो आपके अंदर है मुझे दो, ताकि मैं भी चीज़ों के, पैसों के पीछे ना भागूं। मेरे अज़ीज़ों, यस्सु के पीछे चलने के लिए यस्सु खुद कहता है, अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो,
खुद इनकारी करो, खुद इनकारी, जिसका मतलब अपने आप को खाली करना, और ये डिटैचमेंट के साथ ताल्लुक़ रखती है। ला ताल्लुकी उन चीज़ों को अपने दिलों से निकाल कर बाहर कर दो ताकि इस दिल सिर्फ़ और सिर्फ यस्सु के लिए हो। और तीसरी बात चैरिटी, कि हम दूसरों के लिए अच्छा काम करें, कि इस दिल से जो मोहब्बत है, जो यस्सु रहता है, अब बाहर जाकर अच्छे काम, चैरिटी लव के काम कर सकें। आदशीर कावस जी बड़े मशहूर पारसी राइटर थे डॉन में, अब उनका इंतकाल हो गया। एक दफ़ा उसने ये कहावत लिखी जिसने मुझे बड़ा मुतासर किया। He said, the greatness of a person you can see in the way he treats animals. एक इंसान की बढ़ाई आप उसमें उस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह वो जानवरों के साथ सलूक रखता है। मैंने काहिन होने के नाते से उसको थोड़ी तब्दीली की कि एक काहिन, एक रिलीजियस की बढ़ाई इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वो अपने डोमेस्टिक, अपने जनरल स्टाफ के साथ बर्ताव रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, विंसेंट डी पॉल कहते हैं, गरीबों की हमेशा मदद करो क्योंकि वहाँ पर तुम्हें खुदा मिलेगा। वी आर रिमाइंडेड कि अगर हमारे पास यस्सु का दिल है, ये दिल उनकी तरफ जाएगा जो बेबस, परेशान, गरीब, मुसीबत ज़दा है। ये दिल अगर यस्सु का दिल हो, ये हमें उस तरफ ले जाएगी और हमें मजबूर करेगी कि उनकी मदद करो। लेकिन अगर दिल सख्त है तो फिर हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज मुक़द्दसा ट्रीज़ ऑफ एविला हमें यस्सु के अक़दस दिल के मौके पर हमें सिखाती है कि हम किस तरह अपने दिल यस्सु के दिल की तरह बना सके। सिर्फ़ 3 नुकात पर गौर करना है: हलीमी, ला ताल्लुकी, डिटैचमेंट, और चैरिटी, लव। आए खुदावंद से दुआ करें कि आज जब हम अक़दस दिल की ईद मनाते हैं कि खुदावंद हमें ये हिम्मत, ताकत अता फरमाए ताकि हम अपने दिल यस्सु के दिल की तरह बनाएं, ताकि इस अक़दस दिल के वसीले से हम खुदावंद के मिशन को हमेशा जारी रखें, मसीह खुदावंद के वसीले से। आए मेरे अज़ीज़, हम खड़े होकर अपना ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के ज़ुर पेश करें। हम दुआ करें अपने रूहानी चुपान पापा आज़म लियो 14वें के लिए कि मेहरबान आसमानी बाप इन्हें अच्छी सेहत अता करे, हमेशा इलाही हिकमत, रूहानी क़ुव्वत और निडर ईमान से मामूर रखे, और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई अता करे ताकि वो तेरे लोगों की सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ के साथ रहनुमाई करते रहें। अज़ीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें। ऐ यीशु के नहायत पाक दिल, जो मोहब्बत और रहमत का सरचश्मा है, अपनी पाक कलीसिया पर बरकत नाजिल फरमा, इसे सच्चाई और मोहब्बत में मुत्तहिद रख, इसे हर बुराई से बचा, ताकि ये कलीसिया तेरे पाक दिल की अक्कासी करते हुए आजिज़ी,
انکساری اور محبت میں آگے بڑھتی رہے۔ عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں۔ اے یسوع کے نہایت پاک دل، آج ہم تیرے حضور اپنی آرچ ڈائسس آف لاہور اور خاص طور پر اس کیتھیڈرل کو جو تیرے پاک دل کے نام سے منسوب ہے اسے پیش کرتے ہیں۔ اسے ایمان، امید اور محبت کا مرکز بنا دے۔ ہمارے آرچ بشپ، تمام کاہنوں، سسٹر صاحبات اور مومنین کو اتحاد، ہمت اور تبلیغ کی روح سے بھر دے تاکہ یہ تیرے نور اور محبت کو بانٹتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے امن کے شہزادے، تیرے پاک زخمی دل سے انصاف اور سچائی جاری ہوتی رہے۔ ہمارے ملک کو امن و سلامتی سے بھر دے، ہر طرح کے ظلم و تشدد کو ختم کر اور ہمیں ایسے رہنما عطا فرما جو تیری روشنی میں چلیں، قوم کی بھلائی چاہیں اور ایمانداری سے خدمت کریں۔ عزیزوں مل کر دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے حلیمی اور فروتنی سے بھرے ہوئے یسوع کے پاک دل، ہمارے دلوں کو بھی اپنے جیسا بنا دیں۔ انہیں اپنے صبر، معافی اور محبت سے بھر دے اور ہمیں عاجزی، پاکیزگی اور توبہ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے پاک دل کو دکھی نہ کریں بلکہ خوشی دیں اور دوسروں سے وہی محبت کریں جو تو ہم سے کرتا ہے۔ عزیزوں مل کر دعا کریں۔ اے خدا، ابھی ہم نوینہ کی دعا پڑھیں گے۔ اے میرے خداوند یسوع مسیح، تو نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ دیکھ میں کھٹکھٹاتا، ڈھونڈتا اور مانگتا ہوں کہ تو مجھے ہر اس نعمت سے مالا مال کر دے جو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ ہم اپنے مقصد اور ارادے دل میں خداوند کے حضور پیش کریں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، گنہگار کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ سب مل کر اے یسوع کے پاک دل، میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہے۔ اے میرے خداوند یسوع مسیح، تو نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ دیکھ میں تیرے نام کے وسیلے سے باپ سے مانگتی ہوں کہ تو مجھے ہر اس نعمت سے مالا مال کر دے جو میں تجھ سے مانگتی ہوں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، گنہگار کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے یسوع کے پاک دل، میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہے۔ اے میرے خداوند یسوع مسیح، تو نے فرمایا اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔
देख मैं गुनाहों और बीमारियों के बोझ तले दबी हुई तेरे पास आई हूँ। मुझे आराम और शिफा बख्श और मुझे सिखा ताकि मैं तेरी मानद हलीम और दिल की फ़रोतन बनूँ। अपनी बेमिसाल मोहब्बत की बदौलत मुझे हर उस नेमत से माला माल कर दे जो मैं तुझसे मांगती हूँ। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तुम्हारे कर्ज़ में बख्श। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि अपने दाम ताबर में ईशाक। आमीन। ऐ यीशु के पाक दिल, मेरा कामल भरोसा तुझ पर है। ऐ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तूने फरमाया अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर ईमान लाता है उसके दिल से ज़िंदा पानी की नदियाँ जारी होंगी। ऐ खुदावंद, मेरी रूह तेरी प्यासी है, अपने पाक दिल से रवां ज़िंदगी का पानी मुझे पिला और शिफा का चश्मा मुझ पर उंडेल दे, और मुझे हर उस नेमत से माला माल कर दे जो मैं तुझसे मांगती हूँ। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज़ में बख्श। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि अपने दाम था परमेश्वर। ऐ यीशु के पाक दिल, मेरा कामल भरोसा तुझ पर है। ऐ यीशु के पाक दिल, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं तेरे प्यार के काबिल नहीं, लेकिन मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा और वो तमाम नेमतें मुझे बख्श दे जो मैं तुझसे मांगती हूँ। मुक़द्दसा माँ मरियम के दुखी और बेदाग दिल के वसीले से जो तेरी और हम सब की प्यारी माँ है। आमीन। ऐ खुदावंद, तू जो दिल का हलीम और फ़रोतन है, हमारे दिलों को अपने दिल की मानद बना। पाक दिल का लतानिया। ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर। ऐ मसीह, हम पर रहम कर। ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर। ऐ यीशु, हमारी दुआ सुन। ऐ यीशु, अपने रहम से हमारी दुआ कबूल कर। ऐ खुदा आसमानी बाप, हम पर रहम कर। ऐ खुदा बेटे जहान के निजात दहिंदा, हम पर रहम कर। ऐ रूहुल कुद्स खुदा, हम पर रहम कर। ऐ अक़दस सालूस वाहिद खुदा, हम पर रहम कर। ऐ यीशु के पाक दिल, रहम कर। यीशु के पाक दिल, रूहुल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम के बतन में पड़ने वाले कलमा, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, खुदा के साथ जोहरन मुतहिद, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, बेहद पुरजलाल, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, खुदा के पाक मस्कन, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, हक ताला के खैमे, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, खुदा के घर और बहिश्त के दरवाज़े, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, इंसानों के प्यार में दहकते अलाव, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, इंसाफ और मोहब्बत के ज़र्फ़, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, रहम और प्यार से भरे हुए, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, तमाम नेकी के सरचश्मे, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, तमाम तारीफ़ के लायक, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, सब दिलों के बादशाह और मरकज़, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, जहाँ तमाम हिकमत और इल्म के ख़जाने हैं, हम पर रहम कर। यीशु के पाक दिल, जहाँ आलूयत की तमाम भरपूरी मुतजस्सद है,
हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल जिससे बाप नहायत खुश है, पर रहम कर, यीशु के पाक दिल जिसकी मामूरी हम सब ने हासिल की, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल अब्दी सरफराजी की ख्वाहिश, पर रहम कर, यीशु के पाक दिल साबर और रहीम, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल सब पुकारने वालों के लिए सखी, पर रहम कर, यीशु के पाक दिल ज़िंदगी और पाकीज़गी के चश्मे, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल हमारी बदियों के कफ़ारे, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल मलामत से लदे हुए, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल हमारे गुनाहों के सबब कुचले हुए, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल मौत तक फरमाबरदार, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल नेज़े से छेदे हुए, पर रहम कर, यीशु के पाक दिल तमाम तसल्ली के सरचश्मे, हम पर रहम, यीशु के पाक दिल हमारी ज़िंदगी और क़यामत, पर रहम कर, यीशु के पाक दिल हमारी सुलह और मिलाप, पर रहम कर, यीशु के पाक दिल गुनाह की कुर्बानी, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल अपने भरोसा करने वालों को बचाने वाले, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल उन सब की उम्मीद जो तुझ में मरते हैं, हम पर रहम कर, यीशु के पाक दिल तमाम मुक़द्दसीन की राहत, हम पर रहम कर, ए खुदा के बर्रे तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें बख्श है खुदावंद, ए खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें दुआ सुन ले खुदावंद, ए खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम करे खुदावंद। हम दुआ करें। ए रहीम खुदा, हमारे गुनाहों ने तेरे बेटे के दिल को घायल कर दिया। तू अपने रहम से उस दिल में मोहब्बत का बहुत बड़ा ख़जाना अता करता है। बस बख्श दे कि हम दीनदारी के साथ उसकी इबादत करते हुए लायक कफ़ारे का फ़र्ज़ भी अदा करें। ये सब कुछ हम मांगते मसीह खुदावंद के वसीले से। Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness we spread, we offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. 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 Forever and amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed
अजीज़ो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का और मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा अपने प्यारे बेटे के दिल की बेहद मोहब्बत और उल्फत पर निगाह कर, ताकि हम जो कुछ लाए हैं वो तेरे नज़दीक काबिल कबूल नजराना और हमारे गुनाहों का पुर असर इलाज हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने अपनी इंतहाई मोहब्बत जाहिर करते हुए सलीब पर चढ़कर अपने आप को हमारी खातिर मौत के हवाले कर दिया। उसके छेदे हुए दिल से खून और पानी बह निकला, ताकि उससे कलीसिया के लिए साक्रमेंटों के चश्मे जारी हो और सारी खलकत निजात दहिंदा के खुले हुए दिल के पास आकर खुशी के साथ निजात के सतूनों से ज़िंदगी का पानी लगातार हासिल करे। इसलिए हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी तारीफ़ करते हैं। तू ही कदूस 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 है, तू ही कदूस 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 है। लश्करों के खुदा, लश्करों के खुदा, लश्करों के खुदा, तू ही कदूस 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 है। ये ज़मीं आसमां तेरी अज़मत से पुर, ये ज़मीं आसमां तेरी अज़मत से पुर। आलिमे बाला पर पहुंचाना सलाम, आलिमे बाला पर पहुंचाना सलाम। तू ही कदूस 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 है। है मुबारक कोई, है मुबारक कोई, है मुबारक कोई, है मुबारक कोई, जो खुदावंद के नाम से आ गया, जो खुदावंद के नाम से आ गया। तू ही कदूस 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 है। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है,
جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ایمان کا بیٹ بس باپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے کہ تو نے ہمیں لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ لیو 14ویں بشپ صاحبان کی کل جماعت اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، ولی یوسف، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. آئے میرے عزیزوں، ہم کھڑے ہو کر اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کرے جس طرح خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔
हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही ए खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
हम दुआ करें। ए खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि मोहब्बत की पुरमायने रस्में हम में मोहब्बत और उल्फत की आग सुलगाएं। इससे हम हर वक्त तेरे बेटे की तरफ माइल होंगे और अपने भाइयों और बहनों में उसको पहचानेंगे जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आज मैं अपने छुपाने वाला बिशप बेन मार्जू ट्रेविस की तरफ से आप सबको मसीह खुदावंद के पाक दिल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम ज़ोरदार तालियों के साथ बिशप जी को मुबारकबाद देते हैं और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अदा करता हूँ फादर मास जॉन का चर्च की सारी तैयारी के लिए। शुक्रिया अदा करते हुए सिस्टर एंजेलिना का और उनकी सारी कम्युनिटी का, अलतार की तैयारी का, ब्रदर शफाकत और तमाम ब्रदर्स का, सिस्टर्स का, क्वायर का, जिन्होंने खूबसूरत गीतों की तैयारी की और आज की पाक मास में खूबसूरत गीत गाए हैं। आप सबका शुक्रिया। फादर बिशारत का, स्कूल के हॉल का, जिन्होंने तैयारी करवाई, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम अनाथ सबान का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में सारी मदद की है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बिशप जी को दावा दूंगा कि वो आएँ और आज की ईद के मौके पर जो हैं यीशु के पाक दिल की ईद के मौके पर एक खूबसूरत केक काटें। खुदावंद आपके साथ हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाएं और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद अपने चेहरे पर मुतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रोल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती में जाएं। शुक्र हो।